Hello students, so today we will be talking about the gene, okay, and how is a gene regulated or how is a gene expressed or how is a gene controlled. So we'll talk about regulation of gene control. Regulation of gene control. ठीक है, so regulation of gene control समझने के लिए we would be talking about operon. Okay, and what is operon? I'll tell you. So operon is a segment on DNA. Operon is a segment on DNA which consists of linked genes which control the other genes. So operon is a segment on DNA which consists of linked genes which control the expression of other genes, which help in production of प्रोटीन, जो क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. सो ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन डीएनए का एक सेगमेंट है. ओके, ओपेरॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ लिंक्ड जीन्स. उसके ऊपर लिंक्ड जीन्स हो गए विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स. ओके, एंड दैट जीन्स would be helpful in production of protein. सो ओपेरॉन जो होता है वो डीएनए के ऊपर का एक पोर्शन है जिसके ऊपर अलग अलग टाइप के जीन्स है. ओके, लिंक जीन्स है, दूसरे जीन्स है जो प्रोटीन का प्रोडक्शन में हेल्प करने वाले. ठीक है, वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज ओपेरॉन इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटीरियल is a part of genetic material or DNA which acts as a single regulated gene, which works as a single regulated gene. ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो if you want to. So one is operon is a segment on DNA which consists of linked genes, okay, which control the expression of other genes, which help in the production of protein. Other is operon is a part of genetic material which acts as a single regulated gene. ठीक है. So what is operon? How is it going to work? So the operon concept was given by Jacob and Monod. Operon concept was given by Jacob and Monod. ठीक है, they gave this concept. They studied on E. coli के ऊपर जो था पूरा रिसर्च बेस था. ओके, किसका? जेकब एंड मोनार्ड का. The whole research was based on E. coli. Okay, and based on the research, the operon concept was developed by Jacob and Monod. ठीक है.
Now, what does a operon consist of? So the operon consists of, operon होता क्या ये तो मैंने बता दिया, जीन्स होते हैं उसके ऊपर. Operon consists of, there are genes, we'll term those genes, so it would consist of structural gene, it would consist of operator gene, it consists of promoter gene, it consists of regulator या फिर inhibitor gene. ठीक है? So this 4 types of genes would be present on the operon. ठीक है? स्ट्रक्चरल जीन होगा, ये जीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और बाकी के जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. सिंपल. सो ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन्स, प्रोमोटर जीन्स एंड रेगुलेटर और द इनहिबिटर जीन्स. ठीक है. So now to understand the concept properly, we would talk about one operon, that is the lac operon or the lactose operon. ठीक है? So we are going to talk in this lecture about the lactose operon or the lac operon. ठीक है. इट वॉज स्टडीड इन इकोलाई. इकोलाई में इसको स्टडी किया गया था. ठीक है. सो नाउ आई मेक अ ओपेरॉन. ठीक है. तो फर्स्ट आई टॉक अबाउट लैक ओपेरॉन डील्स विथ, जो इसका प्रोडक्ट है वो एंजाइम है जो क्या करेगा, इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज. ओके, इट वुड बी हेल्पफुल इन ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज. तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब जो एक्टिविटी है दैट इज अ कैटाबॉलिक एक्टिविटी और द कैटाबॉलिक रिएक्शन आप बोल सकते हो. ये जो ओपेरॉन के पास जो जीन्स है, वो जीन्स जो एंजाइम बनाएंगे, जो प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन से जो एंजाइम बनेगा, वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम ब्रेकडाउन करेगा लैक्टोज का. इट वुड बी हेल्पफुल इन ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज. सो बिकॉज लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए मैं इसको टर्म कर रहा हूं एज द कैटाबॉलिक एक्टिविटी. ठीक है. So I'll draw the diagram. ठीक है. So this is a segment. It would consist of different genes located. So there's a gene A, there's a gene Y, there's a gene Z, and there are other genes as well. There is promoter, there is inhibitor, then there is another promoter, and there is operator. ठीक है. तो दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन. मैंने Z बोला तो Z एक जीन है, Y एक जीन है, A एक जीन है, O एक जीन है, P एक जीन है, दूसरा I एक जीन है और ये P एक जीन है. तो ये क्या हो गया, एक पूरा ओपेरॉन हो गया. ठीक है. अलग अलग जीन्स लोकेटेड है. तो ये जो जीन्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, इनके नाम दे ऑल टुगेदर दे आर टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स. क्या कहा जाता है इसे, स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है. ठीक है. तो मतलब इनसे क्या बनाया जाएगा, पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, इनके कोड्स कॉपी हो गए. तो पहली जो चीज यहां पे होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए.
देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। कौन सा प्रोसेस होता है? द प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी की जाती है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और फिर इस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो मैसेंजर आरएनए बना है उस मैसेंजर आरएनए का क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा राइबोसोम के पास जाके। अभी वो डिटेल्स डिस्कस करने का मतलब नहीं है। ओके, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन की वजह से क्या बनेगा? यहां पे बनेंगे प्रोटीन्स, यहां पे क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे, और फिर ये प्रोटीन्स आगे जाके पार्टिसिपेट करेंगे इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि यार ये जो जीन्स है इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी की जाएगी मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ओके, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहा जाता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा तो प्रोटीन्स बनेंगे, और ये प्रोटीन्स हेल्प करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो यहां पे तीन जीन्स है, तो यहां पे 3 टाइप के एंजाइम्स बनेंगे। देयर इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ 3 एंजाइम्स, 3 डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, और ये जो जीन है, ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये क्या कॉपी कर रहा है? ये कंटेन कर रहा है 3 जीन्स को। इट इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ 3 जीन्स एंड इट इज गोइंग टू गिव 3 डिफरेंट एंजाइम्स। सो जीन्स का एक दूसरा टर्म है सिस्ट्रोन। जीन्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज सिस्ट्रोन। ठीक है, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, एज इट इज कैरिंग मोर देन 1 सिस्ट्रोन, 2, 3। ठीक है, तो दिस मैसेंजर आरएनए इज टर्म्ड एज पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। this messenger RNA is carrying more than 1 gene. That is the reason this messenger RNA is termed as polycistronic messenger RNA. अगर ये एक ही जीन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता तो वी वुड हैव टर्म्ड इट एज मोनोसिस्ट्रोनिक, बट यहां पे इट इज कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 जीन्स। ठीक है, सो दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। मैं एक और बात यहां पे मेंशन कर देता हूं, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA इज मोर कॉमन इन Polycystonic mRNA is more common in prokaryotes. It is more common in prokaryotes. ठीक है, तो दूसरा वाला कौन सा मैंने बोला? अभी मैंने बोला मोनोसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। सो इफ आई टॉक अबाउट मोनोसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए, तो आपको याद रखना है मोनोसिस्टोनिक वुड हैव द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल जीन एंड इट इज मोर कॉमन इन यूकैरियोट्स। ये ज्यादा से ज्यादा आपको कहां पे दिखेगा? यूकैरियोट्स। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूं कि यूकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक नहीं दिखेंगे, पॉलीसिस्टोनिक भी दिखेंगे, बट द नंबर वुड बी लेस। द मेजॉरिटी वुड बी द मोनोसिस्टोनिक, और प्रोकैरियोट्स में द मेजॉरिटी वुड बी पॉलीसिस्टोनिक एंड माइनॉरिटी वुड बी मोनोसिस्टोनिक। समझ में आ गया? अगर मैसेंजर आरएनए एक से ज्यादा जीन्स को इंफॉर्मेशन कॉपी करके जा रहा है तो आप बोलोगे इट्स अ पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्लियर है? नाउ जैसे मैंने बोला कि यहां पे क्या बनने वाले, 3 अलग अलग एंजाइम बनने वाले। ओके, अगर मैं बोलता हूं, इसकी बात करते Z, तो Z वाला जो जीन है, ओके, उससे जो एंजाइम बनेगा दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एंजाइम 1। क्या बोलेगा उसको? एंजाइम 1। ओके, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या नाम है एंजाइम का? Z वाला जीन जो एंजाइम कोड करेगा दैट एंजाइम इज टर्म्ड एज एंजाइम 1 या फिर बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, ये क्या करता है एंजाइम? सो बीटा गैलेक्टोसिडेज helps in catabolism, breakdown of lactose। ये एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है।
ठीक है, एंड फॉर्म्स, क्या बनेगा, जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दो चीजें बनेगी, ठीक है, एंड दिस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज वुड बी यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे मेंशन करेंगे द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज अंडरगोज, क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा इनका, अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन, एआर, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड फॉर्म्स एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब अगर लैक्टोज का ब्रेकडाउन करना है बॉडी के अंदर, जो इकोलाई है उसके सेल के अंदर अगर लैक्टोज है और लैक्टोज का ब्रेकडाउन करना है, क्योंकि तभी जाकर आप एनर्जी निकाल पाओगे, तो लैक्टोज का ब्रेक करने के लिए जेड वाले जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो कौन सी चीज का प्रोडक्शन होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम के एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है और क्या बनाता है, बनाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। अभी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को बट ऑब्वियसली सेल क्या करेगा, यूज करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ओके, और क्या फॉर्म करेगा, एटीपी फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, एटीपी फॉर्मेशन के काम में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात हुई किसके बारे में, जेड के बारे में। अब आता है एंजाइम 2, दैट इज वाई। So now we have enzyme 2. तो मैसेंजर आरएनए जो ये जीन कॉपी करा है, ये जीन क्या बनाने वाला है, एंजाइम 2 बनाएगा। सो Y से क्या बन रहा है, Y इज गेटिंग मी एंजाइम 2, या फिर आई यूज द टर्म परमिएस, ठीक है। परमिएस जो है, इट इज अ मेम्ब्रेन बेस्ड एंजाइम प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन बेस्ड एंजाइम। ये एक मेम्ब्रेन बेस्ड एंजाइम है, उसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ लैक्टोज फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। सेल के सराउंडिंग से लैक्टोज से एनर्जी मिलने वाली, तो सेल इज हंग्री फॉर लैक्टोज। तो ये जो एंजाइम है परमिएस, ये क्या करेगा, ये तो मेम्ब्रेन में ही लोकेटेड है, मेम्ब्रेन बेस्ड एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, अगर मेम्ब्रेन की सराउंडिंग में या सेल के बाहर लैक्टोज देखने को मिलेगा, तो ये क्या करेगा, हेल्प्स इन अपटेक ऑफ लैक्टोज फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो सराउंडिंग में से लैक्टोज को अपटेक ले लेगा अंदर की तरफ, और फिर जो बीटा क्या था, बीटा गैलेक्टोसिडेज था, वो क्या कर देगा, लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर देगा और फिर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। दैट वाज वाई एंजाइम 2। अब आते हैं एंजाइम 3 पे। अब आते हैं एंजाइम 3 पे। ए बना के देगा एंजाइम 3, which is termed as trans-acetylase, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है, तो इसका मेन काम है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिन्स, which were taken up by cell during the uptake of लैक्टोज। जब सेल ने लैक्टोज को एब्जॉर्ब किया था, उसके साथ अगर कोई टॉक्सिन्स भी आ गए सेल के अंदर, तो उसका ब्रेकडाउन करने का काम कौन करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिन्स which were taken up
बाय द सेल ड्यूरिंग द अपटेक ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो तीनों जीन्स के मैंने एंजाइम बता दिए। जेड वाला क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस कर रहा है जो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा। वाई एंजाइम 2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, परमिएस कर रहा है। परमिएस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम जो हेल्प करेगा लैक्टोज के अपटेक के लिए, सेल को डिलीवर करने के लिए। और ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए का जो एंजाइम दैट इज एंजाइम 3, इट इज टर्म्ड एज ट्रांस एसिटाइलेज। इट वुड बी हेल्पफुल इन ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिन्स which are taken up by the cell during the uptake of lactose। ठीक है, तो तीनों जीन्स अलग अलग काम करेंगे, तीनों जीन्स अलग अलग एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो तीनों जीन्स है जब इनकी रिक्वायरमेंट है तब आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हो, जब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है आप इनको एक्सप्रेस नहीं करोगे। मतलब ये जो जीन्स है इनको आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी कर सकते हो। तो जो जीन्स विच कैन बी स्विच ऑन और स्विच ऑफ, दे आर टर्म्ड एज luxury genes। So I'll put it as gene A, Y and Z can be switched on मतलब would be helpful in production of enzymes, or switched off when required। ठीक है, the genes can be switched on or switched off when required। तो वो जीन्स जिनको स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया जा सकता है, ओके, those are termed as luxury genes। Those are termed as नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी बोल सकते हो, या फिर लग्जरी जीन्स भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, जो जीन्स का एक्सप्रेशन जब रिक्वायरमेंट है तब एक्सप्रेस कर लिया, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब उन्हें बंद कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, दो जीन्स आर टर्म्ड एज नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या फिर लग्जरी जीन्स। ठीक है, सो अब मैं बात करता हूं यहां पे एक जो इंटरेस्टिंग वाला जीन लोकेटेड, दैट इज द रेगुलेटर जीन और द इनहिबिटर जीन। तो ये जो इनहिबिटर जीन होता है इसका भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, और क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। ओके, और जब मैसेंजर आरएनए बनेगा और फिर जब ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो यहां पे जो चीज बनेगी, जो प्रोटीन बनेगा, दैट प्रोटीन इज टर्म्ड एज रिप्रेसर। द प्रोटीन इज टर्म्ड एज रिप्रेसर। क्या कहा जाता है उस प्रोटीन को, रिप्रेसर कहा जाता है। और ये रिप्रेसर क्या करता है, अपने आप को अटैच करके रखता है, इट कीप्स इटसेल्फ अटैच्ड टू द ऑपरेटर साइट। ओके, मैं यहां पे इसको रब कर रहा हूं, इट कीप्स इटसेल्फ अटैच टू दी ऑपरेटर साइट। जो रिप्रेसर होता है, जो प्रोटीन होता है, अपने आप को कहां पे अटैच करके रखता है, ऑपरेटर साइट के ऊपर अटैच करके रखता है। ठीक है, मतलब यहां पे एक ब्लॉक हो गया। जो पी है, पी को अपन ने प्रमोटर बोला था, पी के पास यहां पे एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। यहां पे कौन होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है पी के पास। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करना है तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या करने पड़ेंगे, ये जीन्स को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, इफ दिस पार्ट ऑफ द जीन हैज टू बी ट्रांसक्राइब्ड, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, सॉरी ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको ये मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ेगा, और ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इन कोड्स को कॉपी करेगा। बट प्रॉब्लम कहां आ रही है, ये आरएनए पॉलीमरेज के सामने कौन है, ये ब्लॉक है। ओके,
ये रिप्रेसर लगा हुआ है यहाँ पे, ये रिप्रेसर इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने देगा, देयर इज अ ब्लॉक, ठीक है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाएगा तो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोड्स कॉपी नहीं हो पाएगी और एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो आरएनए पी है यहाँ पे जो पॉलीमरेज का मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, बट इट इज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज यहाँ पे रिप्रेसर अटैच्ड है। क्लियर है? सो विल टॉक अबाउट ईच ऑफ दी जीन्स, ओके, फिर पूरी बात करते हैं। ये समझ में आ गया? अगर रिप्रेसर यहाँ पे ऑपरेटर के ऊपर अटैच्ड है, रिप्रेसर किसने बनाया है? रिप्रेसर इनिबिटर जीन ने बनाया, रेगुलेटर जीन ने बनाया, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा और ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। Okay, so now we'll talk about each of the gene located. So we have the operator gene. ठीक है, ऑपरेटर जीन को अपन ने ओ लिखा हुआ है। तो ऑपरेटर जीन क्या है? ऑपरेटर जीन कोई प्रोटीन नहीं बना रहा है, आपको याद रखना है। ऑपरेटर जीन इज नॉट फॉर्मिंग एनी ऑफ द प्रोटीन। सेल्फ एक्सप्रेशन is absent. Self expression मतलब I'm talking about the formation of the protein is absent. So यहाँ पे लिख देते हैं no protein is produced. ठीक है? So करता क्या है? So it controls the expression of, it controls कौन से जीन्स थे इसके पीछे की तरफ? एक्सप्रेशन ऑफ वाई, जेड एंड ए जीन. इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ वाई, जेड एंड ए जीन, ठीक है। अब यहां पे इसके ऊपर ब्लॉक कौन लगाता था? ठीक है, अभी अब आपने देखा आगे, तो मैं लिख देता हूं इट कैन बी ब्लॉक्ड बाय, इट कैन बी ब्लॉक्ड बाय repressor. It can be blocked by a repressor protein. तो जब ये रिप्रेसर प्रोटीन से ब्लॉक हो जाएगा, ओके, रिप्रेसर प्रोटीन किसने प्रोड्यूस किया है? आई जीन ने प्रोड्यूस किया है, इनिबिटर जीन ने, ठीक है। तो रिप्रेसर जब आके ऑपरेटर पे ब्लॉक लगा देगा तो क्या नहीं हो पाएगा? It can be blocked by repressor protein. So expression of Y, Z and A is इनहिबिटेड। समझ में आ गया? तो जो ऑपरेटर जीन अपन ने दिखाया था ओपेरॉन के ऊपर, उसका काम क्या है? तो उसका काम ये है कि इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ वाई, जेड एंड ए, ओके। वो खुद के लिए कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, सेल्फ एक्सप्रेशन इज एब्सेंट। एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। इट कैन बी ब्लॉक्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी ब्लॉक्ड बाय द रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन कौन बनाता है? आई जीन बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन ऑफ वाई, जेड एंड ए इज इनहिबिटेड। एक्सप्रेशन ऑफ वाई, जेड एंड ए इज इनहिबिटेड, ठीक है। दूसरा कौन सा जीन था? प्रमोटर जीन था। तो अगर प्रमोटर जीन की बात करते हैं तो प्रमोटर जीन क्या काम करता है? इफ यू टॉक अबाउट द प्रमोटर जीन, दो प्रमोटर जीन दिखाए अपन ने यहां पे, ठीक है। सो प्रमोटर जीन सेल्फ एक्सप्रेशन इज एब्सेंट, सेल्फ expression is absent, means it is not producing any protein for itself, okay। तो कर क्या रहा है? तो it is providing binding site, it is providing the binding site for a very important enzyme, that is RNA
पॉलीमरेज, ठीक है। आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज विल प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो आरएनए पॉलीमरेज की मदद से बनेगा, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे कि यार प्रोमोटर जीन जो है उसका सेल्फ एक्सप्रेशन एब्सेंट है, ठीक है। क्या काम कर रहा है? तो बाइंडिंग साइट का काम कर रहा है। किसके लिए? तो आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम के लिए। आरएनए पॉलीमरेज करता क्या है? तो आरएनए पॉलीमरेज विल प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। दूसरा जीन कौन सा लोकेटेड था? रेगुलेटर जीन और द इनहिबिटर जीन। रेगुलेटर जीन और द इनहिबिटर जीन। So if you talk about the regulator gene या फिर इनहिबिटर जीन, ठीक है, तो उसके बारे में क्या लिखेंगे? सेल्फ एक्सप्रेशन है कि नहीं है? ऑब्वियसली है, तो मैं लिख देता हूं कंटिन्यूसली एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। रेगुलेटर जीन continuously expresses itself. It continuously expresses itself in the cell. तो एक्सप्रेस करता है तो क्या बनाता है? ओके, सो इट प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन जिसको अपने क्या नाम दिया है? रिप्रेसर का नाम दिया है। इसका नाम दिया है रिप्रेसर का नाम दिया, ठीक है। तो ये जीन क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ये जीन, दिस जीन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ, इट इज गोइंग टू बी स्विच्ड ऑन ऑलवेज। तो आप लिख देता हूं मैं ऑलवेज स्विच्ड ऑन। तो वो जीन्स जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते ही रहते, स्विच्ड ऑन रहते, दोज जीन्स आर टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और जीन और द हाउसकीपिंग जीन्स और द हाउसकीपिंग जीन्स, ठीक है। जो जीन अपने आप को कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करता ही रहता है, दोज जीन्स आर टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और द हाउसकीपिंग जीन्स। जो जीन्स का एक्सप्रेशन कंट्रोल किया जाता है, जिन्हें स्विच ऑन किया जा सकता है, स्विच ऑफ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, दोज जीन्स आर टर्म्ड एज नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या फिर द लग्जरी जीन्स, ठीक है। तो रेगुलेशन की भी बात हो गई। अब एक और था आपका स्ट्रक्चरल जीन्स, जो अलग अलग प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाता है। तो स्ट्रक्चरल जीन्स की अगर बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं? पहली बात कर लेते हैं, वन और मोर देन वन आर प्रेजेंट। एक स्ट्रक्चरल जीन हो सकता है या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स भी हो सकते हैं। ओके, इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स एंड कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या काम कर रहे हैं? प्रोड्यूस प्रोटीन एंड कंट्रोल, क्योंकि प्रोटीन के बाद जो एंजाइम बनेगा वो एंजाइम क्या करेगा? लैक्टोज के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर है। सो स्ट्रक्चरल जीन का क्या काम है? तो स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या? प्रोटीन प्रोड्यूस करना। और ये प्रोटीन्स जो है वो आगे जाके जो एंजाइम्स बनाएंगे वो किस प्रोसेस में हेल्प करेंगे? तो इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। देयर कैन बी वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट। और अपन लैकोपेरान पढ़ रहे हैं, तो लैकोपेरान में कितने स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है? सो देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट।
in lac operon, 3 structural gene are present. ठीक है, तो ये मैंने हर एक जीन के बारे में बात करी, मैंने स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बात कर ली, ऑपरेटर जीन के बारे में बात करी, प्रमोटर जीन के बारे में बात कर ली. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगर आप वाला स्ट्रक्चर फिर चेक करो ओपेरान वाला, तो मैंने वहां पे 2 प्रोमोटर्स दिखा रखे हैं. ओके, फिर चेक द स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी पी है. 2 पी दिखा रखे हैं. तो आपको याद रखना है ये वाला पी किसको कंट्रोल करेगा, किसके एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा. तो ये प्रमोट करेगा जेड, वाई एंड ए के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा. और ये वाला जो पी है, 2 पी है ना, ये किसको प्रमोट करेगा, आई के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा. देयर आर 2 पीस, देयर आर 2 promoters in this operon. So this is going to promote the expression of y, z and a, and this p is going to promote the expression of I. ठीक है, ये तो हमेशा काम करता ही रहता I वाला. Done. So now we'll take first condition. पूरे जीन आपको समझ में आ गए कौन सा जीन क्या कर रहा है. So now I'll talk about the first condition, that is अगर सेल के अंदर लैक्टोज एब्सेंट है, lactose is absent in cell. ठीक है, तो अगर लैक्टोज सेल के अंदर एब्सेंट है तो क्या होगा. तो जब लैक्टोज ही एब्सेंट है तो आपको एंजाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि लैक्टोज एब्सेंट है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम टू ब्रेक डाउन और टू डाइजेस्ट दी लैक्टोज. तो उस केस में आपको लैक ओपेरॉन को क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू स्विच इट ऑफ. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एंजाइम. सो नाउ इस केस में द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज repressor binds with the operator. जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है तो अपन ने बात करी थी क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है ब्लॉक हो जाता है. आरएनए पॉलीमरेज इज ब्लॉक्ड, और इसके ब्लॉक हो जाने की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इज नॉट पॉसिबल. फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, मतलब अगर मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, दैट मीन्स जो भी एंजाइम्स अपन ने बोले थे, कौन कौन से एंजाइम थे, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ओके, या फिर परमिएज, ओके, या फिर ट्रांस एसिटाइलेज. बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज यू डोंट नीड इट नाउ. क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि लैक्टोज ही एब्सेंट है. ये वाला एंजाइम आपको पता हो तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता था, पर लैक्टोज जब अवेलेबल ही नहीं है तो ब्रेकडाउन किस चीज का करना है. ठीक है, इसीलिए जो रिप्रेसर है उसने बाइंड कर दिया है ऑपरेटर को, क्योंकि अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं करता ऑपरेटर को तो एंजाइम का प्रोडक्शन होता रहता. एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस द एंजाइम बिकॉज द सबस्ट्रेट लैक्टोज इज एब्सेंट. ठीक है, तो इस केस में रिप्रेसर जब बाइंड हो जाता है ऑपरेटर से, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाता है, इज ब्लॉक्ड. ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इज नॉट पॉसिबल. जब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज है, परमिएज है, ट्रांस एसिटाइलेज है, ये प्रोड्यूस नहीं होंगे. ठीक है, सो ये जो पूरा फिनोमिना हुआ,
इस केस में यह कहा जाएगा कि जो लैक ओपेरॉन है इज नॉट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ. लैक ओपेरॉन इज switched off. It is switched off. ठीक है, because it is not required. And when the leg operon is switched off, it is termed as the negative control. It is termed as negative control. समझ में आ गया? तो लैक्टोज जब सेल के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसे ब्रेक डाउन करने की. तो उस केस में जो रिप्रेसर था, जो आई ने प्रोड्यूस किया था, आईजीन ने प्रोड्यूस किया था, वो रिप्रेसर क्या करता है, वो आके बाइंड हो जाता है किसके साथ, ऑपरेटर के साथ. और जब वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है तो जो प्रमोटर साइड के ऊपर पॉलीमरेज था, वो पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा. और जब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो वो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा. और जब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज ये नहीं प्रोड्यूस होंगे. और जब ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, ओके, तो आपका लैक्टोज जो है ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है, तो ये कुछ काम के नहीं रहने वाले, तो इनको प्रोड्यूस करने का मतलब ही नहीं है. ठीक है, तो जब ये चीजें प्रोड्यूस नहीं की जा रही है तो उस केस में वी वुड टर्म दैट लैक ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ. ओके, या फिर दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज द नेगेटिव कंट्रोल. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द नेगेटिव कंट्रोल. ठीक है, तो ये एक केस हुआ. अब दूसरा केस देखते हैं कि लैक्टोज इज प्रेजेंट इन सेल. ठीक है, लैक्टोज सेल के अंदर प्रेजेंट है. अब प्रेजेंट है तो क्या करना पड़ेगा भाई, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. तो प्रेजेंट वाले केस में व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन सेल, तो उस केस में लैक्टोज बाइंड्स विथ रिप्रेसर. आपको याद रखना, जब लैक्टोज का प्रोपोर्शन सेल के अंदर काफी ज्यादा है तो लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज बाइंड्स विद द रिप्रेसर. और जब लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करेगा, रिप्रेसर कहां पे अटैच था, रिप्रेसर अटैच है ऑपरेटर के साथ. ठीक है, तो जब रिप्रेसर से लैक्टोज बाइंड करेगा देयर वुड बी कॉन्फर्मेशन चेंज या फिर शेप चेंज इन रिप्रेसर. रिप्रेसर के शेप में चेंज आएगा, रिप्रेसर के शेप में चेंज आएगा जब लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करेगा. और जब ये चेंज आएगा, द चेंज इन द रिप्रेसर, द चेंज ऑफ शेप इन रिप्रेसर, change of shape in repressor makes it less or reduces its affinity, makes it less or reduces its affinity is attachment. Okay, reduces its affinity towards, किसके ऊपर अटैच था वो, ऑपरेटर. reduces its affinity towards operator, और जिसकी, and because of this the repressor is detached from operator. समझ में आया? तो जब लैक्टोज आके बाइंड हो गया, जब लैक्टोज का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है सेल के अंदर, तो लैक्टोज आके बाइंड हो गया किसके साथ, रिप्रेसर के साथ बाइंड हो गया. रिप्रेसर कहां पे अटैच्ड है, ऑपरेटर साइड पर अटैच्ड है. तो क्या होगा, रिप्रेसर के अंदर कॉन्फर्मेशन चेंज आएगा, शेप में चेंज आएगा, किसमें, रिप्रेसर में. एंड बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ शेप इन रिप्रेसर या ऑफ रिप्रेसर, change of shape in repressor, its affinity towards operator reduces. Its affinity towards the operator reduces.
ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्फर्मेशन चेंज इन द रिप्रेसर, जो रिप्रेसर ऑपरेटर से अटैच था, अब क्या हो गया, उसकी एफिनिटी पावर टू अटैच ओके टूवर्ड्स द ऑपरेटर रिड्यूसेस। तो उसका अटैचमेंट का पावर, पकड़ के रखने का पावर ऑपरेटर को क्या हो गया, वीक हो गया। तो क्या होगा फिर, रिप्रेसर धीरे से, रिप्रेसर इज गोइंग टू बी इज डिटैच्ड फ्रॉम द ऑपरेटर। और जब रिप्रेसर डिटैच हो जाएगा ऑपरेटर से तो क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज अटैच था किसके पास, प्रमोटर पे, वो अब क्या कर सकता है, वो आगे जाके मैसेंजर आरएनए बना सकता है। सो बिकॉज द ब्लॉक इज रिमूव्ड, यहां पे मैं लिखता हूं, रिप्रेसर ने जो ब्लॉक क्रिएट किया था, ब्लॉक इज रिमूव्ड। तो ब्लॉक रिमूव होने की वजह से क्या होगा, सो नाउ RNA polymerase can form मैसेंजर RNA। अब क्या बन सकता है, मैसेंजर RNA बन सकता है, क्योंकि जो ब्लॉक था, ब्लॉक क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब RNA पॉलीमरेज आगे जाके क्या कर सकता है, कैन फॉर्म मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA से फिर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन और एंजाइम बन सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक हट गया, तो अब क्या होगा, ब्लॉक हट जाने की वजह से मैसेंजर आरएनए बन गया। तो मैसेंजर आरएनए क्या बनाता था, बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज आर प्रोड्यूस्ड मतलब ये प्रोड्यूस होने लग गए अब। सो दैट मीन्स लैक ओपेरान इज स्विच्ड ऑन या स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑन, इट इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो स्विच ऑफ था तो आपने बोला था नेगेटिव कंट्रोल, तो स्विच ऑन हो रहा है तो विल टर्म इट एज दी पॉजिटिव कंट्रोल, विल टर्म इट एज दी पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो फिर से रिपीट करते हैं, लैक्टोज का जब प्रोपोर्शन ज्यादा है सेल के अंदर तो लैक्टोज क्या करता है, रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड हो जाता है। रिप्रेसर ऑपरेटर पे अटैच था, तो जब ये बाइंड होता है रिप्रेसर के साथ जाके तो रिप्रेसर के स्ट्रक्चर में, शेप में चेंज आता है और उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑपरेटर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो फिर ऑपरेटर से डिटैच हो जाता है। तो जैसे ही वो ऑपरेटर से डिटैच होता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो ब्लॉक हो चुका था वो क्या करेगा, अब आगे जाके मैसेंजर आरएनए बना देगा, और मैसेंजर आरएनए मतलब सब आपके कोड्स ट्रांसक्राइब हो जाएंगे और फिर आगे जाके ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेंगे, और ये एंजाइम फिर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। तो आपने लैक ओपेरान को क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, यहां पे एक और बात यह है, मैंने बोला आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर के साथ अटैच होता है, बट उसके अटैचमेंट के लिए एक और प्रोसेस है, ओके, वो भी अपन देख लेते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कब स्विच ऑन हो रहा है, कब स्विच ऑफ हो रहा है। ठीक है, ओके, ये जो ओपेरान सिस्टम है, लैक ओपेरान सिस्टम जो है, it is termed as inducible system. Lac operon is considered as inducible system. It is considered as inducible system. Now what is inducible system? तो आपको याद रखना है कि लैक ओपेरान पहले ऑफ था। क्या था, पहले ऑफ था, ओके, और फिर क्या हुआ, ऑन हुआ। फर्स्ट इट वाज ऑफ और फिर ऑन हुआ। किसकी मदद से ऑन हुआ, तो लैक्टोज की मदद से ऑन हुआ। ठीक है, लैक्टोज का एक और मॉडिफाइड वर्जन भी यूज होता है लैक ओपेरान में, दैट इज टर्म्ड एज एलोलैक्टोज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एलोलैक्टोज भी लिख देता हूं, सेम चीज होगी, थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे लैक्टोज इट इज वर्किंग एज अ केमिकल
और इट इज वर्किंग एज अ इंड्यूसर। ठीक है, तो यहां पे लैक्टोज और एलोलैक्टोज की प्रेजेंस में ओपेरान जो ऑफ था वो क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। ओपेरान जो ऑफ था वो ऑन हो चुका है, सो इंड्यूस हुआ है। यहां पे किसने इंड्यूस किया, लैक्टोज ने इंड्यूस किया। लैक्टोज और दी एलोलैक्टोज दे आर वर्किंग एज इंड्यूसर्स। ओके, तो क्या काम कर रहे हैं, ऑफ से ऑन कर रहे हैं, तो इसीलिए द लैक ओपेरान इज कंसिडर्ड एज अ इंड्यूसिबल सिस्टम। ठीक है, ऑफ से ऑन हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूं इट्स अ इंड्यूसिबल सिस्टम। किसने इंड्यूस किया ये ऑफ से ऑन, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज ने। Okay, so now the positive control जो मैं अभी बात कर रहा था कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ अटैच्ड है, पर वो अटैच कैसे हुआ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो आई विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरान। किस तरीके से होता है पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरान। So it is actually performed by a protein known as CAP, that is catabolic activator protein. It is performed by CAP. What is CAP? CAP is catabolic activator protein. Catabolic एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है, सो ये जो कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन है ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है साइक्लिक एएमपी के साथ। इट रिएक्ट्स विद साइक्लिक एएमपी। ठीक है, एंड साइक्लिक एएमपी इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ओके, तो साइक्लिक एएमपी दोनों मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, दे ज्वाइन एट द प्रमोटर साइट, दे ज्वाइन एट द प्रमोटर रीजन and stimulates the binding of किसकी बाइंडिंग, आरएनए पी की। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं performed by CAP. Okay, so CAP binds with cyclic AMP. It binds with cyclic AMP. Okay, और क्या बनता है, okay, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, they activate the binding site. They activate the binding site on promoter. ये क्या करते हैं, CAP, that is catabolic activator protein, along with cyclic AMP. This is cyclic adenosine monophosphate. Okay, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट द बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन द प्रमोटर सीक्वेंस। ठीक है, मतलब अब क्या होगा, बिकॉज द साइट हैज बीन एक्टिवेटेड, द बाइंडिंग साइट इज नाउ एक्टिवेटेड, तो क्या होगा, अब आरएनए पॉलीमरेज कैन नाउ बाइंड टू प्रमोटर। ठीक है, तो अपन ने पहले बोल दिया कि आरएनए कनेक्टेड है, बट उससे भी पहले कनेक्ट करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सीएमपी एंड सीएपी। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज कैन नाउ बाइंड टू द प्रमोटर, और अब क्या होगा, प्रमोटर से बाइंड हो गया। सो नाउ व्हाट यू कैन, लैक ओपेरान इज स्विच्ड ऑन। क्यों स्विच्ड ऑन बोला मैंने, क्योंकि अब कनेक्ट हो गया, तो अब क्या मैसेंजर आरएनए बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे। ठीक है, तो वी टर्म इट एज दी पॉजिटिव कंट्रोल, वी कैन टर्म इट एज दी पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जिस तरीके से अटैच होता है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, सीएमपी की एंड सीएपी की। सीएमपी साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मैं लिख देता हूं यहां पे,
साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट किसने फॉर्म किया? इट इज फॉर्म्ड बाय एटीपी. साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट इज फॉर्म्ड बाय एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, इज इट क्लियर? So I hope the positive control is clear. CAP याद रखना है, CMP याद रखना है. ओके, और एक दोनों एक्टिवेट करते हैं. एक्टिवेट्स द बाइंडिंग साइट ऑफ द प्रमोटर. बाइंडिंग साइट किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज के लिए. यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, तो पहले बाइंडिंग साइट को एक्टिवेट करना पड़ेगा. सो इट इज एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ CMP, दैट इज साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एंड CAP. ठीक है, सो नाउ अब जो बात दिमाग में याद रखनी है, दैट इज रिप्रेसर का रोल है, लैक्टोज का क्या रोल है, और कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन का क्या रोल है. ठीक है, तो रिप्रेसर क्या है? रिप्रेसर इट्स अ प्रोटीन. रिप्रेसर एक प्रोटीन, आपको पता होना चाहिए चीज. लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट. और कैप क्या है? कैप इज अगेन अ प्रोटीन. नाम में ही है प्रोटीन. ठीक है, काम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या करता है आपको याद होना चाहिए. रिप्रेसर का काम था स्विच ऑफ करके रखना जीन को, लैकोपेरॉन को, तो ये ऑफ करके रखता है. ओके, लैक्टोज किसका काम कर रहा था? तो लैक्टोज इंड्यूसर का काम कर रहा था. और कैप क्या करता है? जीन को ऑन कर देता है, लैकोपेरॉन को ऑन कर देता है. ठीक है, रिप्रेसर इज प्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव कंट्रोल. ये एक नेगेटिव कंट्रोल प्रोड्यूस कर रहा है. लैक्टोज क्या कर रहा है? लैक्टोज इंड्यूस्ड सिस्टम का पार्ट है. ओके, और कैप क्या कर रहा है? तो इट इज गिविंग अ पॉजिटिव कंट्रोल. इट इज गिविंग अ पॉजिटिव कंट्रोल. तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि रिप्रेसर का क्या रोल है, लैक्टोज का क्या रोल है, और कैप का क्या रोल है. तो आपका पूरा लैकोपेरॉन ठीक से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यहां पे मैं बता देता हूं. low level of expression of lactoperon is always present. अभी अपन ने बोला यार लैकोपेरॉन स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, वो तो ठीक है, बट एक और पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है कि सर आपने बोला स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑफ हो गया, बट थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट, लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन, थोड़ा थोड़ा फंक्शनिंग लैकोपेरॉन का चलता रहता है. ओके, या थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी लैकोपेरॉन की चलती रहती है. अब ये एक्टिविटी क्यों ऑन रखनी है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एनर्जी देगा, सेल को एनर्जी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको खाना चाहिए, तो आपको अगर सराउंडिंग में खाना अवेलेबल है तो आप क्या करोगे? खाना कंज्यूम करते जाओगे. तो उसी तरीके से सेल जो है, सेल को भी एनर्जी चाहिए, तो सेल को खाना चाहिए. तो अगर सेल के सराउंडिंग में कहीं पे भी लैक्टोज अवेलेबल है तो सेल क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको यूज करना चाहेगा. ठीक है, तो यूज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ परमेस एंजाइम व्हिच वाज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम. क्योंकि बिना परमेस के सेल लैक्टोज को अपटेक नहीं कर पाएगा, और सेल अगर लैक्टोज को अपटेक नहीं कर पाएगा तो एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, स्विच ऑन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इसीलिए लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट, क्योंकि लैक्टोज आया ही नहीं अंदर सेल के. ठीक है, लैक्टोज डाइट में आता है, खाने में आता है, तो लैक्टोज अगर आया ही नहीं सेल में तो क्या होगा? तो लैकोपेरॉन स्विच ऑन ही नहीं होने वाला है कभी. तो इसीलिए लो लेवल एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट, आपको दिमाग में रखना है.
क्या होगा? बिकॉज ऑफ विच permease is continuously produced. Permease is continuously produced. क्या करता है permease? It helps in uptake of, कौन सी चीज का अपटेक किया जाता है? अपटेक ऑफ लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज जब सेल के पास आएगा तभी तो पूरा प्रोसेस चालू होगा, ठीक है? सो लो लेवल एक्सप्रेशन ऑफ लेकोपेरॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी परिमेज इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड। ओके, परिमेज क्या काम करता है? तो इट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ लैक्टोज, तभी जाके तो आगे के प्रोसेस होने वाले, ठीक है? फॉर ईच ओपेरॉन ऑपरेटर एंड रिप्रेसर, ठीक है, ये जो दूसरी लाइन में बोल रहा हूं, फॉर ईच ऑपरेटर, फॉर ईच ओपेरॉन ऑपरेटर एंड रिप्रेसर, फॉर ईच ओपेरॉन सिस्टम आप देखोगे तो उसमें जो ऑपरेटर है और जो रिप्रेसर है आर specific. So every operon system would have the operator and repressor specific. ठीक है, समझ में आ गया? तो आज अपने लैक ओपेरॉन देख लिया, पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू दी प्रमोटर देख लिया, ठीक है? सो आपने ट्रिप ओपेरॉन पढ़ रखा है, ट्रिप ओपेरॉन में थोड़ा सा अलग था। ओके, तो ट्रिप ओपेरॉन आप अच्छे से पढ़ लो, फिर आप लैक ओपेरॉन पढ़ लो, तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड वंस यू हैव गॉन टू द लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप ओपेरॉन, आप लोग मुझे डिफरेंस बिटवीन लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप ओपेरॉन मुझे व्हाट्सएप कर दोगे लिख के, ठीक है? सो वंस यू आर डन विद दी लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप ओपेरॉन, आप दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है? सो आज के लेक्चर के लिए आई विल कीप दिस मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड मूव अहेड एंड वी वुड टॉक अबाउट द फर्दर डिटेल्स ऑफ द अदर टॉपिक, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय।